Good morning, students. This is fifth unit topic. One or two topics are remaining, like this training for leadership, then training for trainers, and then one more topic, right? So this we will finish up, right? All these PPTs and notes I shall post on Moodle. You can access there, and I am posting this particular all these video lectures as well. Now, training for leadership. So leadership qualities and leadership skill can be developed with leadership training. Now this is an age-old, you can say, argument and discussion among people that whether leaders can be made or leaders are born. You can hold your own opinion. But yes, this is true that people may be born with certain leadership attributes, and if they are given the opportunity to hone those, to sharpen those, they become great leaders. You can talk of Nehru, you can talk of Hitler, you can talk of negative, positive, all kind of leaders. They possess something innate and they further developed it before the others, right? But it is here being said that leadership qualities and skill can be developed with leadership training. But what I think personally, that there should be certain potential also in the person. Every person cannot become a leader. Having said that, leadership skills are needed at every level of the organization, right? All managers, you can say, have in their own small way or big way, they are leaders because they are leading a group of people. Consistent training. Otherwise, the typical image of a leader is the political leader. Modi, this, that, right? But leadership is a trait of personality which is found amongst people, and it has its application in our organizations as well, companies वगैरह में. So consistent training and approaches from executive level through managers and supervisors will help all in the organization to develop their leadership skill. इस leadership training का basic मकसद ये है कि हम leaders बना सकते हैं अगर लोगों को proper training दी जाए, चाहे वो executives हैं, चाहे supervisors हैं, चाहे managers हैं, सबको हम leadership qualities ला सकते हैं उनमें. Now, leadership training may create a reliable, robust and attractive vision of future so that people will respect and believe in a leader. लीडर की एक सबसे खासियत क्या होती है कि वो एक विजन देता है, सोच देता है लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, और उस सोच के सहारे वो लोगों को गाइड करता है, आगे बढ़ाता है. तो ये सबसे पहली चीज है लीडरशिप ट्रेनिंग में जो सिखाई जाती है कि उसका रोबस्ट एंड अट्रैक्टिव विजन ऑफ फ्यूचर होना चाहिए. फ्यूचर को वो ब्राइट दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा उसे. Communicate his vision and see the benefit as people work to the best of their ability and to complete the project he initiates successfully. उसने कोई कदम उठाया है तो वो विजन दिखाएगा कि इसके फायदे, इस काम को करके फायदे क्या होंगे, और वो जिससे कि लोग उसके फॉलोअर्स यानी कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, दे गिव देयर बेस्ट पोटेंशियल, दे गिव देयर बेस्ट एबिलिटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स एंड वर्क एंड इनिशिएट इट सक्सेसफुली. तो ये चीज कम्युनिकेट हिज विजन प्रॉपरली और लोगों को मोटिवेट इतना कर पाए कि लोग अपना बेस्ट दे. देन ग्रो विद सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बिकमिंग अ काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर एंड हु इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन. बंदा कैसा होना चाहिए? लीडरशिप ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं शो करोगे, आप अपनी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते. आप तभी ला सकते हो जब आप खुद सुपर कॉन्फिडेंट हो, तभी आप लोगों में वो बल, वो ताकत, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस डाल सकते हो, ठीक है, और दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो किसी काम को करने के लिए. बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर एक्सपर्टीज एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट दैट टीम मेंबर एंड हिज peers will come to respect, value and trust. So build a reputation of expertise कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, ठीक है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड काम का अच्छा रखो, तभी लोग आपको एज ए लीडर फॉलो करेंगे, एज ए मैनेजर आपको मानेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे कि यस, बंदे में पोटेंशियल है, कैपेबल है, ठीक है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है. तो ये भी एक लीडरशिप ट्रेनिंग का हिस्सा है. इतिहास में एक से एक लीडर्स रहे हैं, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सबके फॉलोअर्स इसीलिए थे क्योंकि उनमें एक एक्सपर्टीज थी, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था लोगों को सही रास्ता दिखाने का. एज अ रिजल्ट लोग उनको फॉलो करते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया, ठीक है, लाइक दैट. उसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री लीडर्स में फ्रांस का जो चांसलर, फ्रांस का जो वो भी बना था, राजा भी बना था, एम्परर ऑफ फ्रांस बाद में बना था, एंड ही वाज अ सोल्जर एट द इनिशियल स्टेज.
नेपोलियन बोनापार्ट। तो आल्प्स माउंटेन, बहुत ऊंची माउंटेन्स थी, फौज उसको कैप्चर नहीं कर पा रही थी, उसको पार जाना था। तो उसने एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब दिया था, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स क्रॉस द आल्प्स। तो उसकी सेनाएं बड़े बड़ी तोपें लेके उतने ऊंचे पहाड़ को क्रॉस करके दुश्मन से लड़ने गई थी। तो उस तरह का लीडरशिप क्वालिटीज जो कि नेचुरल एबिलिटी है, लोगों को मोटिवेट और लोग में जोश भर के उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो चीज भी बिल्टअप करी जा सकती है और होती भी है, दोनों ही चीजें। मेक गुड डिसीजंस अंडर प्रेशर विद कॉन्फिडेंस दैट ही हैज डन द होमवर्क नीडेड फॉर दीज डिसीजंस टू बी राइट। अपना काम अच्छी तरह से करो, ठीक है। गुड डिसीजंस आप तभी कर सकते हो जब अपना होमवर्क आप करके आओगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, और तभी आप दूसरे को आदेश दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी सोच क्लियर नहीं है, आप दूसरों को भी गाइड नहीं कर सकते। राइट, देन बेनिफिट्स ऑफ जस्ट अ मिनट। उसके बाद बच्चों, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड हाईली इफेक्टिव टीम एक्सपैंडिंग हिज एबिलिटी टू डिलीवर मेनी मोर टाइम्स। एक टीम ऐसी बनाओ जो कि फ्लेक्सिबल हो और इफेक्टिव हो, जो आपकी बात सुने, समझे, ठीक है, और आपने उनसे काम लेना है। आर्मी लीडरशिप में यही होता है, बंदों में पता होना चाहिए किससे क्या काम ले रहा है, और उनको इफेक्टिव टीम बनाने के लिए, ठीक है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है, आपने उनको अपनी तरह से ग्रो करने के लिए मौका भी देना है अपनी टीम को, बट आपने उनको ये मोटिवेट करना कि दे हैव टू डिलीवर, जो टास्क दिया है, जो टारगेट दिया है, उसे अचीव करना है। लर्न टू बिल्ड द एम्पैथेटिक म्यूचुअली ट्रस्टिंग रिलेशनशिप नीडिंग फॉर मैक्सिमम टीम परफॉर्मेंस। आपने खाली आदेश नहीं देना, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द को भी समझना है अपने, जिससे कि वो म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन योरसेल्फ एज अ लीडर एंड द टीम मेंबर्स, वो स्थापित होना बहुत जरूरी है। तभी लोग आपको मानेंगे, तभी आपको दिल से फॉलो करेंगे। जब तक आप दूसरे की परेशानी को नजरअंदाज करोगे, वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं हो सकता। तो आपने दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनना भी है, मिटिगेट भी करना है, उनको साथ लेके भी चलना है। एंजॉय म्यूचुअली रिवॉर्डिंग कोऑपरेटिव वर्किंग रिलेशन विद टीम मेंबर्स एंड, आपने दूसरों को कोऑपरेशन लेना है, म्यूचुअली रिवॉर्डिंग, हम भी खुश हैं, हमारे साथ काम करने वाले भी खुश हैं, उस तरह का एंजॉयबल वर्किंग रिलेशन क्रिएट करना विद योर मेंबर्स एंड पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है। तभी काम को सक्सेसफुली, हम कोई भी इंडस्ट्री का काम हो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को। कीप पीपल ऑन टारगेट एंड परफॉर्मिंग वेल टुगेदर इन अ फर्म बट फेयर मैनर। काम तो आपने लेना ही है, बट आपने भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, आपने किसी को फेवर नहीं करना है। जो अच्छा है उसको पूरा प्रोत्साहन दे रहा है, जो नहीं है उसको क्रिटिसाइज भी करना है, बट इन ए कंस्ट्रक्टिव वे, जिससे कि वो भी काम कर सके। दैट गेट द जॉब डन वाइल रेस्पेक्टिंग द राइट ऑफ द टीम मेंबर। हमने काम तो करवाना है लोगों से, बट हमें दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट को भी हर्ट नहीं करना है। ये भी लीडरशिप ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि चूंकि जो हमारे काम करने वाले हैं, अगर हम उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखेंगे, तभी वो हमारे को दिल से काम करके देंगे। लर्न टू इंस्पायर एंड मोटिवेट टीम मेंबर्स सो दैट दे विल कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। ऑब्वियसली मोटिवेशन ही सबसे बेसिक चीज होता है, एक लीडरशिप का काम होता है कि लोगों को, अपने बंदों को, लीडर्स एज अ लीडर उसे मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वो अपना बेस्ट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिकम ए ट्रूली इंस्पिरेशनल लीडर, एंजॉय द पर्क्स दैट कम विद इट। जब आदमी ट्रूली इंस्पिरेशनल लीडर होता है, लोग उसे एक्सेप्ट कर जाते हैं, तब आप उस पोजीशन को एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। लोग वाहवाही करते हैं, आप एंजॉय करते हैं, लोग आपके लिए काम करने को खुद से मंजूर रहते हैं, खुद इच्छा दिखाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग, सो मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये है। इंस्पायर एम्प्लॉय ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड लॉयल्टी, लोगों को आप ये रेस्पेक्ट एंड लॉयल्टी का पार्ट पढ़ा सकते हैं। एक्वायर प्रेजेंटेशन स्किल टू इन्फ्लुएंस एंड परsuade, आप दूसरों में इन्फ्लुएंसिंग एंड परsuading पावर ला सकते हैं, ठीक है, ये आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग का फायदा है। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली, हेल्प पीपल टू थिंक इन अ न्यू एंड इनोवेटिव वे। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्टिवली उसे सुलझाना है, और लोगों को नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सोच और नई थिंकिंग के साथ हेल्प करना है। मैनेज परफॉर्मिंग यूजिंग द मोस्ट करंट अपडेटेड टूल्स एंड सिस्टम, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, ठीक है। ये लीडरशिप ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि लोगों से काम लेना है तो आपको टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा। डेवलप विन विन एग्रीमेंट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं, बाहर के हैं,
उनके साथ विन विन एग्रीमेंट करना है, हमने लूज विन वाला बिल्कुल नहीं करना। मैनेज डिफरेंसेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू जेंडर और एज और एथनिसिटी। ठीक है, इन सारी चीजों से परे जाके आपको अपना ध्यान रखते हुए काम करना है। आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनालिटी, ये सब मैटर करती है। ठीक है, right, so we will end over here. Next we will follow up with training for training.